السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو قرآن پاک میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 159 کو انشاءاللہ تعالی آج ہم اور آپ کریں گے، جو کہ ہے 2 لائن کا۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے اور اس سے آپ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھ سکیں۔ ویڈیو کو شیئر بھی کیا کرے صدقہ جاریہ کی نیت سے، تاکہ آپ کے شیئر کرنے سے جتنے لوگ کچھ بھی سیکھے ان سب کا اجر آپ کو ملے۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدى من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ تو 2 لائن کو میں نے تلاوت کی ہے۔ سب سے پہلے اوپر آ جائیں۔ ان الذین، حمزہ نون زیر ان، اور نون کے اوپر دیکھیے شد ہے، پھر نون کو لام سے ملائیں گے۔ ان الذین، ان الذین، ان الذین، لذین، ذین، ذین، ٹھیک ہے۔ تو ذال اور یا زیر ذی، تو یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ ہوگا، یا لہٰذا کھینچیں گے۔ ان الذین، ذین، آگے یکتمون، یا کاف زبر یک، تا پیش تو، یکتو، میم واو پیش مو، یکتمو، نون زبر نا، یکتمون، یکتمون، یہاں سے ان الذین یکتمون، تو ان میں نون مشدد کا غنہ، پھر لام سے ملا دیا، لام کو زبر کی ساتھ پڑھیں گے، پھر ری میں یا مدہ کر رہے، نون کو جلد ادا کر رہے، یا کاف کو ملا دیا، یک تو منہ میں واو مدہ کیا، نون کو پھر جلد پڑھنا ہے۔ آگے یہاں دیکھیں ما انزلنا، تو ما ایک لفظ ہے اور انزلنا ایک لفظ ہے، حرف مد اس میں آ رہا ہے اور حمزہ دوسرے لفظ میں آ رہا ہے، لہٰذا یہ مد منفصل کا قاعدہ ہوا۔ پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ جب بھی حرف مد ایک لفظ میں آئے اور حمزہ دوسرے لفظ کے ساتھ آئے تو وہ ہو جاتا ہے مد منفصل کا قاعدہ۔ 3 سے 4 الف کھینچیں گے اور کھینچتے ہوئے ملائیں گے۔ ما انزلنا، انزلنا، زلنا، زلنا، اخفا، کیونکہ نون ساکین ہے، اس کے بعد حرف زا آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر ہم اخفا کریں گے۔ اخفا کہتے ہیں ناک میں نون کی آواز کو چھپانا، یہ کہلاتی ہے اخفا کرنا۔ زلنا، زلنا، انزلنا، انزلنا، ٹھیک ہے، نا میں الف مدہ ہو گیا۔ آگے من البینات، میم زیر می، نون لام زبر نل، مینل، با یا زبر بئی، یا زیر یی، بئی، نون کھڑا زبر نا، تا زیر تی، بیناتی،
बैयिनाती, बैयिनाती। या के ऊपर कभी भी तशदीद दिखे तो सख्ती के साथ आवाज निकालना है, जैसे कि बैयिनाती, बैयी, बैयिनाती। ना को फिर खींच रहे क्योंकि खड़ा जबर है, और खड़ा जबर किसके बराबर होता है? अलिफ मद्दा के बराबर। तो अलिफ मद्दा की तरह इसे भी खींचेंगे एक अलिफ के बराबर। उसके बाद ताज़िर ती। आगे वल हुदा, वाव लाम जबर वल, हा पेश हु, दाल खड़ा जबर दा, वल हुदा, वल हुदा, वल हुदा। ठीक है। आगे मिम बादी, मीम मीम जेर मीम, बा इन जबर बा, दाल जेर दी, मिम बादी, बादी। यहाँ पर देखिए छोटी सी आपको मीम दिख रही है, ये कहलाती है इक़लाब का कायदा। क्या कहलाती है? इक़लाब का कायदा। जब भी आपको यहाँ पर या कहीं पर भी ये छोटी सी मीम दिखे तो आप समझ जाएं कि ये इक़लाब का कायदा है। अब इक़लाब क्या होता है? तनवीन या नून साकिन के बाद, गौर से सुने, तनवीन या नून साकिन के बाद, यहाँ पर देखिए नून साकिन के बाद है, कहीं पर आपको तनवीन के बाद बा दिखेगा, तो तनवीन या नून साकिन के बाद बा आ जाए तो नून को मीम से बदलकर गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ा जाता है, जो कहलाता है इक़लाब का कायदा। ठीक है। इक़लाब के माना ही है बदलना। तो यहाँ पर हम नून को मीम से बदल देंगे, ये छोटी सी मीम से। तो हम जब मिलाएंगे तो क्या पढ़ेंगे? मीम बादी, मीम, गुन्ना भी कर रहे, मीम बादी, बादी, मीम, ऐसा करना है। आगे बादी, तो क्या कायदा हुआ? इक़लाब का कायदा हुआ। आगे आइन को भी निकालेंगे साफ और वाज़ेह तौर पर, बादी, बादी। आगे मा बय्यन्नाहु, मा बय्यन्नाहु, मा अलिफ मद्दा, बय्यन्नाहु, बय्यन्नाहु। ठीक है। आगे लिन्नासी, लिन्नासी, लाम नून जेर लिन, नून के ऊपर शद आ गया और नून को नून मुशद्दद का गुन्ना करेंगे, उसके बाद ना अलिफ मद्दा भी करेंगे, और सीन जेर सी। आगे फिल किताबी, फा लाम जेर फिल, काफ जेर की, फिल की, ता खड़ा जबर ता, बा जेर बी, ता में खींचेंगे। यहां तक देखे इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना, मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बअदि मा बय्यन्ना, मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फिल किताब। अब यहाँ पर एक चीज़ देखें, शुरुआत से आपको कायदा नोट करना है तो नोट कर ले। पहले हमने किया नून मुशद्दद का गुन्ना, उसके बाद री में हमने किया या मद्दा, उसके बाद यहाँ पर देखिए बिल्कुल सिंपल है, ज़बर पढ़ना है, यहाँ पर या को काफ से मिलाना है, पेश पढ़ना है, फिर यहाँ वाव मद्दा किया हमने। उसके बाद यहाँ पर हमने मद किया, 3 से 4 अलिफ खींचा, ये है मद्द मुनफसिल, क्योंकि हर्फ मद एक अलग लफ्ज़ में है और हमज़ा एक अलग लफ्ज़ में है। मद्द मुनफसिल का कायदा किया, 3 से 4 अलिफ खींचा। उसके बाद हमज़ा को नून से मिलाते हुए हमने यहाँ पर किया इख्फा, यानी कि नून की आवाज़ को नाक में छुपाया। उसके बाद ना में फिर अलिफ मद्दा किया, मीम जेर के साथ पढ़ेंगे, नून को लाम से मिला दिया, फिर बैयिनाती, बिल्कुल सिंपल। या में थोड़ी सख्ती करनी है, बैयी, बैयी, बैयिनाती, 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 बैयिनाती।
आगे वलहुदा, वलहुदा दा में खींच रहे अलिफ मद्दा के बराबर। उसके बाद हमने इक़लाब का कायदा किया, यानी कि गुन्ने के साथ पढ़ रहे, नून को मीम से बदलते हुए, फिर आइन को निकाला, फिर माँ में अलिफ मद्दा किया, फिर बैयन नून मुशद्दद का गुन्ना किया, या में सख्ती बनाएंगे, शद है, बैयन्नाहु नून मुशद्दद का गुन्ना, फिर लिन्नासी फिर नून मुशद्दद का गुन्ना, फिर फा को लाम से मिला दिया, फिर किताब। अगर यहाँ पर स्टॉप करें तो बाकियों पर सुकून लगाएंगे और बा में कलकला भी करेंगे। तो यहाँ तक पूरा कवायद आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। आगे चल रहे, उलाइका हर्फ मद के बाद हमजा उसी लफ्ज में है, लिहाजा मद्दे मुत्तसिल होगा, 3 से 4 अलिफ खींचेंगे। उलाइका आगे यलअनुहुमुल, यलअनुहुमुल्लाहु, यलअनुहुमुल्लाहु, यलअनुहुमुल्लाहु। बिल्कुल मैं रुक रुक के पढ़ रही हूँ, दिखा रही हूँ। यहाँ पर अक्सर ये जो लफ्ज़ है लोगों का गलत हो जाता है, तो गौर और ध्यान से देखें। यलअनुहुमुल्लाहु समझ आ रही? जब हम रवानी में पढ़ेंगे, टोन में पढ़ेंगे, तर्ज में पढ़ेंगे, यलअनुहुमुल्लाहु, 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 समझ आ रही? तो ये लफ्ज़ थोड़ा मुश्किल है, बाज़-औक़ात यलअन हो जाता है, यलअनहुमुल, यलअनहुमुल। ये गलती अक्सर व बेशतर होती है इस लफ्ज़ में कि हम आइन जो है ना, आइन को नून से मिला देते हैं, गोया कि नून के ऊपर सुकून है, जबकि यहाँ पर नून के ऊपर क्या है? ज़म्मा है, यानी कि पेश है। नून के ऊपर पेश है तो इसे सेपरेटली पढ़ना है, ठीक है, सेपरेट पढ़ना है। यलअनुहुमुल, बिल्कुल पेश को जाहिर करते हुए, यलअनुहुमुल्लाहु, यलअनुहुमुल्लाहु, समझ आ रही? तो यलअन नहीं बोलना, यलअनहुमुल, अनहुमुल नहीं बोलना। अनहुमुल अगर आप बोल रहे तो गलत है। आप जो पढ़ते हैं ना उसको गौर से सुने, क्या आप सही पढ़ रहे? मैं बताती हूँ अक्सर कि आप इतने काबिल बन जाएं, इतने काबिल बन जाएं और इतनी पहचान हो जाए आपको तजवीद की कि आपको खुद अपनी गलतियाँ खुद समझ आने लगे कि यहाँ पर मैं गलत हूँ, यहाँ पर मैं गलत पढ़ रही हूँ। तो अपने आप को इतना काबिल बना ले, यानी कि इतना तो तजवीद सीख ले कि आपको खुद समझ आ जाए कि आप यहाँ पर गलत पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आइन को नून से मिलाना नहीं है, बल्कि अलग अलग पढ़ना है। यलअनुहुमुल्लाहु, समझ आ गई? लफ्ज़ अल्लाह का लाम मोटा रख रहे क्योंकि मीम के ऊपर पेश है। आगे फिर वही लफ्ज़ है वयलअनुहुमुल्लाइनून। अब यहाँ पर एक चीज़ गौर करना है, यहाँ पर मीम को लाम से मिला रहे थे, लाम को हम मोटा कर रहे थे ना, लेकिन यहाँ पर जब हम मिलाएंगे तो लाम को हम बारीक रखेंगे। क्यों भाई? यहाँ पर भी तो लाम से पहले पेश है, फिर इस लाम को हम बारीक क्यों पढ़ेंगे? ये सवाल आ रहा होगा, जहन में आ रहा है ना? तो देखिए, सिर्फ और सिर्फ लफ्ज़ अल्लाह का लाम का ये कायदा है कि लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले वाले हर्फ के ऊपर अगर ज़बर या पेश है तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम को हम मोटा करेंगे, लेकिन अगर लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले वाले हर्फ के नीचे ज़ेर है तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम को हम बारीक रखेंगे। ये कायदा कब लागू होगा? जब लफ्ज़ अल्लाह होगा। लफ्ज़ अल्लाह के अलावा बाकी हर लाम को हर हाल में हमें बारीक रखनी है। तो यहाँ पर हम लाइनून नहीं कर सकते, लाइनून कोई ऐसा पढ़े तो ये बिल्कुल गलत है। लाम को यहाँ पर मोटा नहीं करना, इस लाम को हम बारीक रखेंगे। वयलअनुहुमुल्ला, ला नहीं, लाइनून,
लाइनून, आइन ज़रई, नून वा पेश नू, वा मद्दा और नून के ऊपर वक्फ। तो समझ आ रही? इस लाइन को यहाँ से उलाइका से सुने और इस लफ्ज पर ज्यादा गौर व ध्यान देंगे, ठीक है, कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, गौर से सुने। उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून। एक बार फिर सुने, उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून। तो पूरी आयत कंप्लीट होती है। तो ये जो है ना, ये लाइन थोड़ा मुश्किल है, यलअनुहुमुल्लाहु, यहाँ पर तो सबसे पहले तो यलअनुहुमुल जो लफ्ज़ है उसको सही तरीके से अदा करना है। दूसरी बात ये ख्याल रखनी है कि मीम जैसे लाम से मिलेगा, ये लाम मोटा पढ़ेंगे। उसके बाद फिर वही लफ्ज़ है, इसे फिर ध्यान से अदा करना है। और यहाँ पर इस बात का ख्याल रखना है कि मीम जब लाम से मिलेगा तो ये लाम बारीक रहेगी, क्योंकि ये लाम लफ्ज़ अल्लाह का लाम नहीं है, ठीक है। तो लाम का कायदा आपको समझ में आ गया होगा। तफसील से जानना है तो मेरा जो नूरानी कायदे का प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें आप जाकर देख सकते हैं, हर लेसन को तफसीली तौर पर सीख सकते हैं। मेरे चैनल का जो प्लेलिस्ट है ना, प्लेलिस्ट में जाकर देखें, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी। कुरान बच्चों के लिए भी मैंने उसकी जो वीडियोस है वो बनाकर डाला हुआ है, और बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आप अपने बच्चों को घर पर पढ़ाते हैं तो यकीनन वो वीडियो ज़रूर भी ज़रूर जाकर देखें। कुरान फॉर किड्स के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। उसके बाद शॉर्ट्स वीडियो जो है वो देखें, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। दुआएं हैं, सुनन व अज़कार हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन दुआओं के बारे में बताया है और या पढ़ा है अपनी ज़िंदगी में, तो वो सारी दुआएं उसमें आपको मिलेंगी। हदीसें हैं, 40 अहादीसों को याद करने की बहुत बड़ी फजीलत है। तो आप 40 अहादीस याद करें, वो भी आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और कुरानी दुआ भी है, उसका भी एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो हर चीज़ का एक कुरान से जो दुआ निकाला जाता है वो है, वो सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी। तो प्लेलिस्ट जाकर देखें, वहाँ से सीखें, मेरे साथ जुड़े रहें। इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो आगे की जो आयतें हैं इंशाअल्लाह ताला वो पढ़ेंगे। तो हम इसी तरीके से पारा नंबर 2 को भी मुकम्मल करेंगे, फिर 3, 4, 5। बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अल्लाह ताला आसानी का मामला फरमाए और इसी तरीके से पूरे कुरान शरीफ को मुकम्मल करवाए। आमीन सुम आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला मेरी इस मेहनत को कबूल फरमाए और मेरे इल्म में मज़ीद 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 इजाफ़ा कर दे और मुझे दोनों जहां की कामयाबी नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।